Oh, so good morning. Okay, Subham Kumar is already joined. Okay, good to see that. Okay, Subham, kindly inform your classmates to join the classes. Okay, Prem Prakash Gupta is also joining. Kindly inform your classmates that class is going to start. Yes, yes, good morning. Simran Kumar is also joining. Abdul Khalik Raza. Okay. Kumar, Shabjit, and Rishikesh Chandra is also joining. Okay, let them join. And Manisha Kumari. Okay. Suraj Priyadarshi and Abhishek Kumar. Okay. Okay, so many students: Ranveer, Ritik, Ashish Kumar, Muskan Kumari. Okay, till now 13 of you have joined. 13 of your classmates are in the class. Okay, so as you know, the class will start at 8:05, and in the meantime, you can ask any kind of doubt you have till now topic which we have covered. And for today's class, we will study about the system call in very in depth. We will see various kinds of system call. Why we have a glimpse of system call in the previous class also, and we will study about monolithic operating system and micro kernel structure also, and with the help of this module 1 will be over. Let's see, can we finish that in today's session? And if you have any kind of doubt, then please ask. 16 of your classmates are already joined. Please inform me, do you have any kind of doubt? Let me know. Okay, 3 students, 4 students are joining. Nikhil, Saurabh, Ramakrishna, Rahul Kumar Singh. Okay. Okay, till now 20 students have joined. Vipin Kumar is also joining. Aman Raj is also joining. Good. Praveen Kumar is also joining. Ayush Bharti.
Rahul Kumar Singh is joining from the two system. Okay, maybe there is some kind of issue. Suraj Kumar is also joining. Okay, now it is 8:05. So let's start today's class. In the meantime, if your classmates will trying to join, I will let them in. So हमने प्रीवियस क्लास में सिस्टम कॉल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे करता है, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरीज वगैरह क्या होती हैं, फोल्डर्स क्रिएट करना, दिस दैट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने देखा था. ठीक है, आज हम टू पीपल आर ट्राइंग टू ज्वाइन. ओके, स्मृति रूपम, राहुल कुमार स्टिल इज ज्वाइनिंग. ओके, सो सिस्टम कॉल, ये स्लाइड हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे रिलेटेड विद द सिस्टम कॉल, related with the system call. So now move forward, we will see the analogy about the system call, how it is making, how it is progressing. Okay, so यहाँ पे मैंने analogy को दिखाया है. 26 students are joining. Tanushri Sharma is also joining. Okay, यहाँ पे एनालॉजी मैंने कैसे सिस्टम कॉल मेक किए जाते हैं, कैसे उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टम कॉल हम क्या करना चाहते हैं. सिस्टम कॉल है आपका रीड एफडी. एफडी कोई फाइल का नेम है. ठीक है, फिर आपका बफर है. बफर आप जैसा जानते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी टू स्टोर द डेटा. लेंथ है कि मतलब कितना फाइल को रीड करना है. तो ये एक सिस्टम कॉल बनाया गया है. ठीक है, कि ये सिस्टम कॉल को कैसे वर्क कराया जाएगा. तो सबसे पहले आपका जो आर्गुमेंट है, जो भी आर्गुमेंट्स है, ये जो भी आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स तो जानते होंगे, फॉर्मल, एक्चुअल आर्गुमेंट्स. आई थिंक आपको C++ में पढ़ाया गया कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं. तो उसी आर्गुमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे जैसे 3 आर्गुमेंट दिख रहे होंगे, फिर क्या हो जाएगा. ओके, वन स्टूडेंट इज आल्सो ऐश्वर्या एंड आदित्य कुमार. ओके, सो अभी तक 30 लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को. इट इज गुड टू सी दैट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, कॉल करेगा, कॉल रीड. तो रीड ऑपरेशन है, उसको कॉल किया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही कॉल कर लिया जाएगा तो अब इसको पता चल जाएगा इट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम कॉल. तो ये क्या करेगा, जंप करेगा. ये एक इंटरप्ट करने के लिए अब ये प्रोसेस में जा रहा है कि नाउ इट इज गोइंग फॉर द इंटरप्शन. मोहित राज इज आल्सो ज्वाइनिंग. तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ट्रैप कोड इन रजिस्टर. जो इसका कोड हमने लिखा है यहाँ पे, जो भी फर्दर कोड होंगे उसको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्स के अंदर में लिया जाएगा, कि रजिस्टर्स में डेटा लिया जाएगा फॉर द फास्ट वर्किंग. रजिस्टर जैसा कि मैंने आपको मेमोरी हायरार्की में भी पढ़ाया था कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मेमोरी इन विच द हाईएस्ट प्लेस विच गेट इज बाय द रजिस्टर. तो रजिस्टर्स स्टोरेज के लिए काम करते हैं आपका. अब आपका यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा यूजर स्पेस होता है और कर्नल स्पेस होता है. तो ये न्यू टेक्निकल टर्म आ रहा है, मैं थोड़ा डिटेल कर दूं. यूजर स्पेस जो होता है ना, यूजर स्पेस इट मींस जो प्रोग्राम वगैरह हम लोग जो मेनली वर्क करते हैं उनको यूजर स्पेस कहा जाता है. ये प्रिमिटिव इन नेचर होता है. ठीक है, प्रिमिटिव इन नेचर होता है, मतलब इसको प्रिम्प्ट कर सकते हैं आप. और जो कर्नल स्पेस होता है, कर्नल स्पेस बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शन रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ये आपका किस में होता है, ये आपका कर्नल मोड में होता है. तो सिस्टम 2 मोड में रन करता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. एक होता है आपका यूजर मोड में और एक होता है आपका कर्नल मोड में. कर्नल मोड आपका नॉन प्रिमिटिव इन नेचर होता है, उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं. यूजर स्पेस मोड आपका सिंपली जो यूजर प्रोग्राम्स वगैरह यूज करते हैं उनके लिए होता है, और ये प्रिमिटिव इन नेचर होता है. ठीक है, तो अभी तक हम यूजर स्पेस में हैं. तो यूजर स्पेस में क्या हुआ, ट्रैप कोड इन रजिस्टर हुआ. फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं कर्नल को. तो कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जहां पे कि हमारा कुछ फंक्शनैलिटी होगा. तो ठीक है, अब फंक्शनैलिटी करने के लिए हम फोर्थ क्या करेंगे, स्टेप करेंगे कि हम डिस्पैच इसको, सबसे पहले कर्नल में जाएंगे और कर्नल क्या करेगा, कर्नल फिर इसको डिस्पैच करेगा कि इस वर्क को करना है. ठीक है, तो अब ये सीपीयू को एलोकेट हो जाएगा, सीपीयू यहाँ पे फंक्शन करेगा आपका, और उसके बाद जब ये फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा,
तो उसके बाद क्या होगा, आपका सिस्टम कॉल हैंडलर को ये दिया जाएगा। अब क्या करेगा, अब यहां से सिस्टम, इसका काम खत्म हो गया, अब ये बाहर निकलेगा, जिसको पता चल जाएगा कि इसका काम खत्म हो गया, तो ये अब आपका यूजर मोड में फिर से एंट्री लेगा। यूजर मोड में जैसे ही एंट्री लेगा तो वहां पे नेक्स्ट जो इसका इंस्ट्रक्शन है, व्हाट इज दैट, रिटर्न टू द कॉलर। रिटर्न टू द कॉलर इट मीन सेवेंथ में क्या हुआ, सेवेंथ में ये आपका कर्नल मोड से यूजर मोड में आया। ठीक है, अब यूजर मोड में आने के बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको क्या मिला, रिटर्न टू द कॉलर। तो कॉलर को के लिए वो रिटर्न कर जाएगा इन 8th स्टेप। फिर 9th स्टेप में क्या है आपका, 9th स्टेप में है इंक्रीमेंट एसपी। एसपी क्या है आपका, एसपी हियर इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर को क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो this is all about the working or how we can make a system call. So am I clear to all of you student? सर स्टैक पॉइंटर को क्यों इंक्रीमेंट? I'm not able to get it. स्टैक अच्छा, आज मे भी आप स्टैक पॉइंटर क्या होता है, इंक्रीमेंट क्यों होता है, क्योंकि आपका जो जो कि आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली आपका यहाँ पे आपका डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका बेसिकली स्टैक पॉइंटर में, स्टैक में आपका सिस्टम कॉल रहता है, ताकि पहले कौन आया बाद में कौन आया ये हमें पता चले। और जिस टाइप से हम इसको फंक्शन प्रोवाइड करते चले जाएंगे, आपका स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी लिया जा सकता है कि स्टैक को क्या किया गया, लोअर मेमोरी से बनाया गया। जो टॉप है वो 0th लोकेशन पे है, जो बॉटम है वो आपका कुछ हाईएस्ट लोकेशन पे है, लाइक एफ एफ एफ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसको इंक्रीमेंट करेंगे। इन दिस केस इट इज टॉकिंग अबाउट द इंक्रीमेंट। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, एट द टॉप इज एट द 0th लोकेशन, और जो इसका जो बॉटम पॉइंट है इज एट द हायर लोकेशन। क्योंकि सिस्टम कॉल क्या होते हैं, स्टैक के हेल्प से ही किए जाते हैं, क्योंकि स्टैक में ये डिसाइड होता है कि कौन कौन से सिस्टम कॉल मेक किए गए हैं। मनीष कुमार इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। ओके, एम आई क्लियर टू यू? मुझे क्वेश्चन आपका पूरा क्लियरली सुनाई नहीं दिया था, बट आई वाज ट्राइंग टू डिस्क्राइब। यस सर। ओके ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपका ये सिस्टम कॉल था, मैंने जो अभी पूरा डिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे है कि प्रोग्राम पुश करेगा, आर्गुमेंट कॉल करेगा लाइब्रेरी को। तो लाइब्रेरी कॉल हुई इसके लिए कि कौन कौन सा लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट है। फिर यस बेटा, ओके ठीक है, देन क्या होगा, लाइब्रेरी सेटअप करेगा आपका ट्रैप के लिए। तो लाइब्रेरी सेटअप करेगा ट्रैप के लिए, कॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। यही मैंने यहाँ बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, ये पूरा हैंडलिंग कर रहा है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम कॉल को। फिर कंट्रोल रिटर्न किया जाएगा किसको, लाइब्रेरी को। ठीक है, लाइब्रेरी को कंट्रोल रिटर्न किया जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, लाइब्रेरी रिटर्न करेगा यूजर प्रोग्राम को। सभी को ये चीजें क्लियर है? ये जब भी आपका सिस्टम कॉल के बारे में पूछा जाए तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है, और लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। ऐसे ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट आप लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास टाइम हो तो लिख दीजिएगा। बट बट ट्राई टू रिमेंबर दीज ऑपरेशन, पहले कौन हो रहा है बाद में कौन हो रहा है, ये सारे ऑपरेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब भी सिस्टम कॉल पूछा जाए तब आप इस डायग्राम को जरूर से जरूर बनाएंगे। ठीक है, और मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट को हमेशा कि अगर डायग्राम पूरा का पूरा याद हो तभी बनाइए, अगर आपको याद नहीं हो तो कृपया नहीं बनाइए, क्योंकि डायग्राम से दिख जाता है कि डज द स्टूडेंट नो अबाउट द थिंग्स और नॉट। पूरा आपका ये एक डायग्राम आपका मार्क्स पूरा का पूरा दिला सकता है, या कुछ मार्क आपका रिड्यूस भी करवा सकता है। ठीक है, तो जब तक कि डायग्राम पूरा याद ना हो प्लीज डोंट मेक इट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम कि सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम कॉल किए जाते हैं, फाइल वगैरह या डायरेक्टरी वगैरह। तो अभी सबसे पहला मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, ये सेट्स ऑफ एग्जांपल हैं, ठीक है। तो आपका एक सिस्टम कॉल होता है ओपन। ओपन, इसमें एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं नेम एंड हाउ। नेम का जो मतलब होता है कि हम किस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना चाहते हैं, और हाउ का मतलब होता है आप किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, आप उसको रीड करना चाहते हैं या उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं। तो आप इस दो मोड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिस्टम कॉल टू मेक द ओपन ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल को यूज करना है तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्लोज एफडी। जिस फाइल को यहाँ पे फाइल को बनाया गया था, उस फाइल को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो क्या देंगे, क्लोज एफडी। एफडी यहाँ पे क्या है, वो वेरिएबल है फॉर फॉर विच बाय विच वी हैव ओपनड आवर फाइल। तो ये क्या होता है, दिस इज यूज टू क्लोज अ ओपन फाइल। और जो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपका ये बेहतरी के लिए होता है कि आपका फाइल में कोई और ऑपरेशन ना कर दे, तो जब भी आपने प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर लिया तो एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आप क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन क्लोज। मिथुन कुमार इज ऑल्सो ज्वाइनिंग but he is joining class late. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, रीड। रीड तो अभी आपने देखा, इसमें क्या होता है, जिस फाइल को रीड करना होता है, और बफर, बफर के हेल्प से ही हम रीड करते हैं, और साइज, कितने साइज हमको, कितना डेटा हमको रीड करना है। तो रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल इनटू अ बफर। उस तरह से राइट होता है, राइट में क्या होता है, उसी टाइप से हम वेरिएबल देते हैं और हम राइट कर सकते हैं अपने फाइल में। एलएस, एलसीक, 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 एलसीक एक उस टाइप का आपका सिस्टम कॉल है जो फाइल को एक पर्टिकुलर ऑफसेट, एक पोजीशन, ऑफसेट इट मींस की करंट पोजीशन पे लेके जाता है, उस करंट पॉइंटर की ओर लेके जाता है, मूव करता है करंट पॉइंटर फॉर अ फाइल। मतलब कि हमको कितना, अभी अगर मान लिया जाए 42nd लोकेशन पे है, तो हमको कुछ मूव कराना है अगर अपने इसको पॉइंटर को, करंट पॉइंटर को, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफसेट अगर हम 42 प्लस 32 अगर ऐड करें, ऑफसेट की वैल्यू अगर हम ऐड करें, तो हमारा जो पॉइंटर होगा अपने फाइल का, वो 32 लोकेशन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा अपवर्ड। -32 होगा तो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ एलसीक यू कैन मूव द पॉइंटर्स आल्सो। अब नेक्स्ट होता है एस्टैट। एस्टैट क्या होता है, गेट अ स्टेटस इंफॉर्मेशन इन अ बफर। यहाँ बफर, जो बफर का एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इस बफर में फाइल का क्या स्टेटस है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिस्टम कॉल होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी। mkdir, मेक डायरेक्टरी। अब आप एक न्यू डायरेक्टरी अगर मेक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए mkdir सिस्टम कॉल का यूज कर सकते हैं। rmdir होता है रिमूव ए डायरेक्टरी। बट यहाँ पे ये कंडीशन होती है, तभी आप रिमूव कर सकते हैं जब वो डायरेक्टरी पूरा का पूरा एम्प्टी हो। याद रखिए स्टूडेंट, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको फंक्शन कॉल, आई विल आस्क इट समवेयर, ठीक है। लिंक, लिंक नेम वन नेम टू, यहां पे क्या किया जाता है, आपका दो ऑब्जेक्ट को एक साथ लिंक कर दिया जाता है, मतलब एक साथ दोनों एक को ही पॉइंट करेंगे। क्रिएट ए न्यू एंट्री, हम यहाँ पे न्यू एंट्री नेम टू को क्रिएट कर रहे हैं, दैट पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट एज नेम वन। नेम वन जो पहले से मौजूद है, उसको, उससे हम क्या करें, नेम टू को लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो लिंकिंग का वर्क हो गया। अब हम अनलिंक करना चाहते हैं तो अनलिंक सिंपली करेंगे नेम,
रिमूव करेंगे नेम एज अ लिंक टू ऑब्जेक्ट, मतलब अगर जैसे कि हमने यहाँ नेम टू किया था, लिंक किया था, तो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे अनलिंक नेम टू। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका नेम टू जो लिंक हुआ था नेम वन से, अब वो अनलिंक हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों अलग अलग चीज को लोकेट करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ और सिस्टम कॉल्स होते हैं हमारे पास। सिस्टम कॉल जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा, बहुत फेमस सिस्टम कॉल है फॉर्क। फॉर्क क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्क यू कैन क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस, और ये जो चाइल्ड प्रोसेस होंगे ये आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्रोसेस से। वेट पी आई डी, वेट पी आई डी चाइल्ड, जब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आपका हो सकता है एग्जीक्यूशन पेरेंट और चाइल्ड का। पेरेंट साथ साथ एग्जीक्यूट करे, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, या फिर पहले चाइल्ड पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर ले, तो उस केस में जो आपका पेरेंट होगा वो वेट करेगा। तो वेट पीआईडी क्या होता है, वेट फॉर अ चाइल्ड टू टर्मिनेट। तो ये सिस्टम कॉल उस समय ऑकर होता है। EXEVC ये भी आपको पढ़ाया गया, रिप्लेस अ प्रोसेस कोर इमेज। जो आपका प्रोसेस का जो इमेज है, कोर इमेज है कि उसमें क्या वैल्यू है, ये है वो है, वो सारी चीजें रिप्लेस की जाती है जो आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे। एग्जिट स्टेटस, एग्जिट फंक्शन है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न स्टेटस। जो आपका स्टेटस है उस प्रोसेस का वो भी रिटर्न करता है। आप प्रोग्राम बहुत समय रन करते होंगे, बहुत सारे आपके कंपाइलर पे देता होगा एग्जिट विथ जीरो। तो वो क्या करता है, जीरो आपका बेसिकली एक स्टेटस की तरह पास हो रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल रहा है कि ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, एग्जिट विथ अ सम नंबर, तो वो पता चलेगा कि नहीं ये कुछ एरर के साथ एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जिट विथ सम अदर नंबर, तो ये पता चलेगा कुछ वार्निंग आया है। ठीक है, तो लाइक दिस आपका प्रोग्राम जो प्रोसेस होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। CHDIR, change directory, change the working directory. chmod, तो चेंज ए फाइल प्रोटेक्शन बिट, प्रोटेक्शन बिट जो होता है फाइल के अंदर में, आप उसको ch मोड से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप फाइल का नेम देंगे और आप किस मोड में उसको चेंज करना चाहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किल, किल PID सिग्नल, तो सेंड करेंगे अ सिग्नल टू अ प्रोसेस, एक सिग्नल पास किया जाएगा प्रोसेस को कि नाउ आई वांट टू किल यू, और ये जो प्रोवाइड किया जा रहा है सिग्नल वही पास होगा। ठीक है, अब हम कितना टाइम इलैप्स हुआ है, गेट द टाइम इलैप्स्ड सिंस 1 जून 1970, तो आप वाया दिस सिस्टम कॉल यू कैन गेट दिस ऑल्सो। So this is all about the system call. Hope I was clear. Please try to remember few system call. It will be asked somewhere in your Viva, in your examination or somewhere. So it is very important, student. Now moving upon to the monolithic operating system structure. Monolithic में क्या होता है, आपका जैसा कि मैंने बताया कि आपके दो मोड में सिस्टम वर्क करता है, एक आपका कर्नल मोड होता है और एक आपका यूजर मोड होता है। मोनोलिथिक में क्या होता है, जितने भी वर्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ, या फंक्शन से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड में वर्क करते हैं। मोनो इट मींस सिंगल, सिंगल ही इसमें आपका क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, पूरा का पूरा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, चाहे प्रोसेस एग्जीक्यूशन दिस दैट, वो यूजर के मोड के अंदर में नहीं जाता है। ठीक है, तो मेन प्रोसीजर होता है आपका, यहाँ पे दिखाया गया मेन प्रोसीजर है। फिर सर्विस रूटीन्स होती हैं वेरियस, जैसे व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी वांट टू प्रोवाइड, और जो आपका एप्लीकेशन होता है यूटिलिटी रूटीन होती है, वो यूटिलिटी रूटीन कनेक्टेड होती है आपकी सर्विस रूटीन से। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो OS होता है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूटिलिटी ऑल्सो। So this is the monolithic operating system structure. We will look into more diagram about this by the help which you will able to understand. ये आपका मोनोलिथिक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, एक तरफ आपका हार्डवेयर है और पूरा का पूरा जो भी आपका सिस्टम कॉल है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, फाइल सिस्टम है, शेड्यूलिंग का वर्क है, वर्चुअल मेमोरी है, ये सारा का सारा कौन देख रहा है, कर्नल मोड के अंदर में देखा जा रहा है। ये कर्नल मोड ही सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है इसका।
तो ये एक आपका मोनोलिथिक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्क है, चाहे वो डिस्पैचर से हो, शेड्यूलर से हो, फाइल सिस्टम से हो, वीएफएस से हो, तो ये सारा का सारा वर्क कर्नल मोड में ही होता है। और ये जो होता है आपका एप्लीकेशन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका कर्नल मोड से। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ मोनोलिथिक कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ये इस डायग्राम को कभी भी पूछा जाए तो प्लीज ड्रॉ दिस आल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने एक सिस्टम में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है? प्लीज टेल मी। और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है? Yes, student, right now 35 of you are here. Kindly respond. I asked that how many of you have used more than one operating system in your system? Subham. Linux window. Ashish Kumar Roy ने कहा है कि Linux Windows. Okay. Subham का भी reply है, yes sir, he used it. BOS and Windows XP in school PC. BOS. Okay, आयुष भारती का reply है. Anyone else? Oracle का यूज करके लिनक्स. ओके, गुड. चलिए, अच्छा, इन डॉस एंड विंडोज, डॉस का स्पेलिंग पहले गलत है, DOS होता है, DOUS नहीं होता, आई थिंक. निखिल कुमार. चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने ये जो विंडोज 7, नॉर्मली विंडोज 7, 8, 10, शुभम कुमार का रिप्लाई है. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए हैं, ये क्या सिस्टम को पार्टीशन करके यूज किए थे? मतलब आपके पास जैसे कि 512 GB का स्टोरेज था, तो आपने क्या किया, एक को सी ड्राइव बनाया, कुछ पार्ट को डी ड्राइव, कुछ को ई ड्राइव. यस सर, आशीष कुमार राय का रिप्लाई है, यस सर. ओके, ओके, इट मींस आपने जो हार्डवेयर था बेसिकली उसी को पार्टीशन कर दिया, और उसके अंदर एक को सी में और दूसरे को डी में. ओके, गुड, 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 वेरी गुड. मैक ओएस एंड विंडोज, सूरज कुमार का कहना है. ओके, सो इट मींस मोस्ट ऑफ यू have till now partitioned your hardware in various fragment and stored operating system in that. Okay, okay, so this is one of the mechanism, and there is one other mechanism also, and that mechanism is known as virtual machine. मैं एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, अपने सिस्टम में एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ. मैं सभी को मेरा ये दिख रहा है? वर्चुअल बॉक्स खोला है, ये वर्चुअल बॉक्स दिख रहा है सभी को मेरा स्क्रीन? यस सर. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक तो मैं विंडोज यूज करता हूँ, ठीक है, विंडोज यूज करता हूँ फॉर द जनरल पर्पस. अगर मुझे कुछ कोडिंग या वगैरह कुछ और वर्क करना होता है तो मैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे, ये अरिस्टास जो दिख रहे होंगे नेटवर्किंग के एप्लीकेशन वगैरह रन करने के लिए, ये अरिस्टास को मैं यूज करता हूँ. वेरियस मैंने पार्ट्स बनाए हुए हैं अरिस्टास को, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम फिडेरो होता है, फिडोरा होता है. और ये उबंटू भी आपको दिख रहा होगा, जिसका उबंटू ही ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो बेसिकली मैं एक ही सिस्टम के अंदर में मैं वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा हूं, ठीक है. वाई द पावरिंग ऑन आई कैन स्टार्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये सारे के सारे जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है विद द हेल्प ऑफ अ वर्चुअल मशीन, and this virtual machine is named as VM virtual box. VMware भी कुछ लोगों ने सुना होगा कि VMware कुछ लोगों ने शायद यूज भी किया होगा. तो अभी हम उसी के बारे में बात करें कि we have a virtual box also, virtual
मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक ही सिस्टम के अंदर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको करने के लिए एक इमेज फाइल वगैरह डालना होगा, उसको फिर क्या करना होगा, रन करना होगा, सेटिंग वगैरह करनी होगी, तो वो तो डिटेलिंग का पार्ट है। ठीक है, नाउ कम अपॉन टू द टुडेज टॉपिक। टुडेज वी विल स्टडी वर्चुअल मशीन आल्सो। वर्चुअल मशीन में क्या करते हैं हम, वेरियस यहाँ पे आपको मशीन्स, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रहे होंगे, लाइक आपका लिनक्स है, विंडोज नेटवर्क के लिए यूज किया गया है, फ्री डीएसबी यूज किया जा रहा है, और ये सब जैसे मैं फिडोरा यूज कर रहा हूँ, उबंटू यूज कर रहा हूँ, फिर फिडोरास के ही बहुत सारे वर्जन यूज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पे VMware को दिखाया गया है उसी टाइप से। ठीक है, VMware दिखाया गया है। ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता है आपका VMware को। ठीक है, आपका जो बेयर हार्डवेयर होता है ये रियल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब एप्लीकेशन जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली ये अपने जो वर्चुअल मशीन होता है उनसे कम्युनिकेट करता है। वर्चुअल मशीन जैसे कि यहाँ पे मेन जो है हमारे पास, मेन मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिनक्स ना होकर के मेरे पास विंडो है। तो ये क्या करेगा, जो मेरा वर्चुअल बॉक्स है ये कम्युनिकेट करेगा विंडो के साथ, विंडो फिर क्या करेगा, इसको हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। यहाँ पे सिस्टम कॉल हो रही है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉल टू द साइमल्टेनियस इनपुट आउटपुट, ये भी वर्क चलता रहता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, फर्स्टली यूज्ड किया गया था इन VM370s विथ CMS। ठीक है, और आज जो अवेलेबल है ये VMware या वर्चुअल बॉक्स के रूप में अवेलेबल है। allows user to run x86 32-bit operating system on top of Linux or network। ठीक है, guest operating system can crash without harming underlying operating system। हो सकता है कि मैं जो फिडोरा का यूज कर रहा हूं, फिडोरा वो क्रैश हो जाए। ठीक है, बट इससे इससे फायदा क्या है, वर्चुअल मशीन से फायदा क्या है कि आपका ये जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंपैक्ट नहीं करेगा, इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। तो मेरा सिस्टम क्या रहेगा, हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूज। ओनली वर्चुअल मशीन फेल होगा, रेस्ट ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइन। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इवन यूज रॉ हार्डवेयर, जैसे कि वहां पे आपने दिख रहा होगा कि मैंने कुछ रैम वगैरह भी यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, वर्चुअल मशीन कीप्स थिंग्स सेपरेटेड, हर एक को अलग अलग मेमोरी, अलग अलग मैंने प्रोसेसर वगैरह प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन। कभी भी वर्चुअल मशीन को वर्चुअल मेमोरी से ये नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत लोग कभी कभी वर्चुअल मशीन पूछे जाते हैं तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताने लगते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन इज अनदर कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी इज अनदर कॉन्सेप्ट, डोंट मिक्स इट अप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो है दैट इज माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। तो माइक्रो कर्नल में क्या होता है, आपका माइक्रो कर्नल में थोड़ा सा पार्ट आपके जो हम प्रोसेस करते हैं उसमें आपका क्लाइंट प्रोसेस भी रन करता है। इट मींस यूजर, जो आपका यूजर प्रोसेस है। कमिंग सर। साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, व्हाट इज, सभी को साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, please check from your side that there is some internet issue is there or not। तो आपका यहाँ पे क्या है, क्लाइंट प्रोसेस है, क्लाइंट प्रोसेस रन कर रहा है। तो ये क्या करेगा, आपका डायरेक्टली माइक्रो कर्नल के हेल्प से क्या करेगा, मेमोरी सर्वर को कनेक्ट करेगा, क्योंकि दिस इज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। माइक्रो कर्नल जो होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए यूज किया जाता है। उसी टाइप से बहुत सारे जैसे फाइल सर्वर भी होते हैं, टर्मिनल सर्वर भी होते हैं आपका, फिर क्या शेड्यूलर्स होते हैं, प्रोसेस सर्वर होते हैं, तो ये सारे सर्वर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, दीज आर सर्विसेज डन इन द यूजर मोड।
कुछ सर्विसेज यूजर मोड में रन कर रहे होते थे। मोनोलिथिक में क्या होता था, पूरा का पूरा जो काम होता था वो सिर्फ कर्नल मोड में ही रन होता था, ठीक है, और एप्लीकेशन सेपरेटेड होता था। तो ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज माइक्रो कर्नल, ये बेसिकली कर्नल मोड में होंगे। तो प्रोसेसेस चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर्स हो, डू नॉट शेयर मेमोरी, सबका मेमोरी क्या होता है, अलग अलग होता है। कम्युनिकेशन जो यहाँ होता है वाया मैसेज पासिंग, कुछ मुझे वर्क करवाना है तो ये प्रोसेस जो होगा PX, ये मैसेज पास करेगा किसको, किसी अदर प्रोसेस PY को, मैसेज पासिंग मैकेनिज्म, ठीक है, मैसेज पास किया जाता है, शेयर्ड मेमोरी नहीं, पाइप्स नहीं, मैसेज पासिंग को यूज किया जाता है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर में फॉर द कम्युनिकेशन। सेपरेशन जो है यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ बाइजेंटेनियम फेलियर। बाइजेंटेनियम फेलियर इट मींस कि अगर एक कोलेटरल डैमेज आपने सुना होगा, एक बिल्डिंग अगर गिरती है तो वो दूसरे को भी इंपैक्ट करती है, दूसरी गिरती है वो तीसरे को इंपैक्ट करती है, लाइक दिस। तो यहाँ पे चूंकि सब चीज सेपरेटेड है, फाइल अलग सेपरेटेड है, टर्मिनल सर्वर अलग सेपरेटेड है, प्रोसेस सर्वर अलग सेपरेटेड है, यूजर प्रोसेस अलग से वर्क कर रहा है, माइक्रो जो आपका मेमोरी सर्वर है वो अलग सेपरेटेड है, तो एक दूसरे को ये इंपैक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इनका सेपरेशन किया गया है। एग्जाम्पल्स यू इंक्लूड मैक, ठीक है। चलिए एक डायग्राम देखते हैं माइक्रो कर्नल से ही रिलेटेड, तो उसमें और क्लियर होगा आपको। ये माइक्रो बेस्ड कर्नल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे क्या था, वहां पे पूरा का पूरा कर्नल मोड था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, कर्नल मोड भी है और साथ ही साथ आपका यूजर मोड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए आपका एक मॉड्यूल यूज किया गया, यूनिक्स सर्वर के लिए एक मॉड्यूल यूज किया गया है, डिस्क ड्राइवर के लिए एक अलग मॉड्यूल है, फाइल सर्वर्स के लिए अलग मॉड्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो पार्ट है, ओके बेटा, जो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है बेसिक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने का वर्क या फिर जो शेड्यूलिंग से रिलेटेड वर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड के अंदर में होता है, ठीक है। ये आपका ये जो है, ये सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस कैन बी हैपन इन द कर्नल मोड एज वेल एज यूजर मोड, बट ये जो है बेसिक आईपीसी या वर्चुअल मेमोरी या शेड्यूलिंग का ये काम सिर्फ और सिर्फ नीचे नीचे मिलेगा बेटा। तो ये आपका कर्नल मोड में रन होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, हम मोनोलिथिक में पूरा का पूरा काम कर्नल मोड में करवा रहे थे, ओके, पूरा का पूरा काम कर्नल मोड में करा रहे थे। यहाँ कुछ काम हम यूजर मोड को भी देते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर तो उस समय भी अलग था आपका, और एप्लीकेशन वहां भी अलग था, तो ये दो चीजें सेम है, बाकी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, तो इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम एंड की ओर पहुंच चुके हैं, अपने पूरे मॉड्यूल 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ जैसे कि मैट्रिक यूनिट्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बताया गया है। तो आई थिंक ये सब आप जानते होंगे, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, एटलीस्ट नैनो तक जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद पीको फेम्टो एटो भी होता है, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट आपका अगर हम पॉजिटिव पावर्स की ओर आते हैं, इनमें क्या है, एक चीज अगर आप कॉमन देखेंगे तो 3 के एडिशन में चल रहा है, 3 का डिफरेंस है सबके बीच में। किलो होता है 10⁻³ मेगा होता है 10⁻⁶, गीगा होता है 10⁻⁹ और टेराबाइट्स तो आजकल यूज किया जाता है 10⁻12, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 1, वी हैव कंप्लीटेड दैट। From the next class, we will start module number 3, which is inter-process communication. We have seen the glimpse of inter-process communication, but we will from the next class we will dig deep into the inter-process communication. क्या होता है, कैसे होता है, critical section क्या होता है, mutual exclusion, बहुत सारे technical term आएंगे, बहुत सारे टेक्निकल टर्म आएंगे और उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट अभी टाइम है, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड विद टुडेज सेशन, प्लीज टेल मी।
Please tell me if you have any kind of doubt, then share with me. I will try to solve it right here, right now. Okay, student, I am providing you link for today's attendance. Kindly fill it up. I have provided you attendance link. Everyone kindly respond. अभी 35 स्टूडेंट हैं यहाँ क्लास में. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि I will close the link also. So kindly respond it before 9 o'clock. 20 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है फिल करने के लिए. चॉकलेट मम्मी देगी, नीचे जाइए, मम्मी दे देंगी. Yes, beta. Okay, student, if you have any kind of doubt, kindly respond it via the microphone or via the chat box. हाँ, कुछ ने प्रीवियस क्लास में आई थिंक किसने मेंशन किया था सर, थ्रेड हमें पढ़ना है मॉड्यूल 2 में, बट आफ्टर सम ऑफ द टॉपिक फ्रॉम IPC I will introduce you thread because there is some relation between that. Slide 29 once again. 29. Okay, let's see. Slide 29. It is a monolithic OS structure. जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया ना, पूरा का पूरा काम कर्नल मोड में ही हो रहा है. वही यहाँ पे भी दिखाया गया कि आपका मेन प्रोसीजर होता है. मेन प्रोसीजर के बाद जैसे ये आपका मेन प्रोसीजर आपका कर्नल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो उसी टाइप से आपका मेन प्रोसीजर हो गया. फिर सर्विस रूटीन, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे सर्विस यहाँ पे दिखाया गया, VFS है, सिस्टम कॉल है, IPC है, फाइल स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया सर्विस कॉल. और नेक्स्ट जो यूटिलिटी रूटीन है ना, यूटिलिटी रूटीन इज जस्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम. ठीक है, सुमित का कहना है प्लीज एक्सप्लेन हाउ वर्क VMware. हाउ वर्क VMware? आई डिडंट गेट इट. सर ये कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे फर्स्ट इधर लास्ट के सेकंड से कनेक्ट है. बट कनेक्टेड है इट मींस कि आपका क्या है कि जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना. जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन रन कर रहा हूं, लाइक कि मैं वर्ड फाइल कोई क्रिएट कर रहा हूं. ठीक है, अब वर्ड फाइल में बहुत सारा वर्क हो सकता है. मैं की स्ट्रोक क्लिक कर रहा हूं, we are going to शिमला, मैं ये टाइप कर रहा हूं. तो यहाँ पे क्या है कि मैं की स्ट्रोक दे रहा हूं, तो ये की स्ट्रोक वहां जाएगा. ठीक है, अब की स्ट्रोक जाएगा तो वहां पे हो सकता है कि वेरियस यूटिलिटी, ये जो आपका यूटिलिटी है डॉक्स फाइल, ये आपका वेरियस पार्ट से कनेक्टेड हो सकता है कि इसको आपका क्या कहा जाए, इसको सर्विस रूटीन फाइल का भी रिक्वायरमेंट हो, किस फाइल में सेव हो रहा है ये सारा इंफॉर्मेशन. अभी उसको स्टेटस का रिक्वायरमेंट हो कि आपका स्टेटस क्या है, आपने कितने वर्ड्स वगैरह लिख चुके होंगे. तो वी कैन हैव वेरियस काइंड ऑफ सर्विस रूटीन. शेड्यूलर मतलब शेड्यूल करना है कि अब इस प्रोग्राम को रन करना है, इसको रन करना है, लाइक दिस. तो दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्शन हियर. ठीक है, जैसे ये जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को इसकी भी सर्विस चाहिए, ये इसकी भी सर्विस चाहिए, मे बी शेड्यूलर हो सकता है, और इसकी भी सर्विस चाहिए, हो सकता है ये फाइल सिस्टम हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, दे आर इंटरकनेक्टेड. अब ये क्या है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी सर्विस रूटीन उनसे कनेक्टेड है. दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शन. ठीक है, अब कैसे कम्युनिकेट करेगा आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे कम्युनिकेट करेगा. देयर मस्ट बी अ लिंक एंड दिस लिंक इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम कॉल इटसेल्फ.
मैंने आपको सिस्टम कॉल इससे पहले बताया ना पूरा डिटेल में, तो उस वही सिस्टम कॉल से ये कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन वगैरह ये यूटिलिटी वगैरह क्या होता है, वो सिंपल कोड होते हैं। अब इन कोड में के अंदर में वेरियस सिस्टम कॉल होंगे, मतलब ओपन करना है फाइल को, तो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर का हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा। दिस इज इन दैट केस। एम आई क्लियर टू यू? प्रेम प्रकाश गुप्ता, ये प्रेम का ही क्वेश्चन Yes. था। ओके ओके, सो किसी को और कुछ डाउट है? किसी को कोई और डाउट है? प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर डाउट है तो डाउट बताइए, नहीं है तो हम लोग प्लीज रिस्पॉन्ड दैट आल्सो कि कोई डाउट नहीं है। देखिए कितने, बहुत लोग अटेंडेंस देके चले जाते हैं या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्या बात है? अटेंडेंस के लिए आते हो क्या कुछ लोग? पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है क्या? अटेंडेंस खत्म हुआ, 31 लोग हो गए। ओके, स्मृति, रूपम, शुभम कुमार। अच्छा, एक प्रेम प्रकाश का ही क्वेश्चन है, सर एक्सप्लेन अबाउट वीएम मशीन उबंटू। वीएम मशीन उबंटू को, अब देखिए यही बात है, अब आप पूछ रहे हैं ऐसा चीज जो कि पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसको समझाने में टाइम लगेगा, और फिर आप बोलेगा कि सर, सुमित का ही कहना नो डाउट, फिर आप बोलेगा सर सिलेबस नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, जैसे ये मैं वर्चुअल बॉक्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा उबंटू का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जनरल है कि ये उबंटू मशीन है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू को यूज किया जा रहा है, बेस मेमोरी मैंने इतना लिया है 4 GB के आसपास, ठीक है। अब ये सारा कुछ डिटेल है अबाउट माय दिस हार्डवेयर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि वेरियस कोड यहाँ एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, वेरियस कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, ये बहुत सारा कोड आपका यूआईडी, जीआईडी वगैरह, मोड वगैरह करके, साइज वगैरह, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेरा जो करंट अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा हूँ ना, जिसके ऊपर रन कर रहा हूँ, विंडोज के ऊपर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो वाया द हेल्प ऑफ दिस कोड, वो क्या किया, वो उनसे कम्युनिकेट किया। तो वो क्या किया, सिस्टम कॉल को इन्वोक किया, और सिस्टम कॉल के हेल्प से क्या किया, वो जो मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ये इंफॉर्मेशन दिया कि मैं ये रन कर रहा हूँ, रन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई एरर आता तो वो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो जाता कि नहीं, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ एरर। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रहे होंगे कि मशीन ऑटोमेटिकली कैप्चर द कीबोर्ड, और दिस मींस दैट यू डू नॉट हैव कैप्चर द माउस पॉइंटर। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम दिस विल रिमूव and system will run, ठीक है। it is taking a time। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो उबंटू सिस्टम है ये खुल गया। अब मैं यहाँ पे यहाँ पे भी चाहूँ तो ऑपरेशन कर सकता हूँ। जैसे मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स का जो वेब ब्राउजर है उसको ओपन किया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये खुल गया, और नाउ आई कैन डू द ऑपरेशन। तो अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या किया, ये तो वर्चुअल मशीन में रन कर रहा है। अब यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हो रही है। यहाँ जहां मेरा कर्सर है वहां पे देखिए ये कनेक्ट हो रहा है नेट से वाया द हेल्प ऑफ दिस, ये यूएसबी डिवाइस शो कर रहा है। तो ये आपका अब क्या हुआ, दिस इज नाउ ओपनिंग द गूगल, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेसिंग। होप यू वांट टू नो अबाउट दिस। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब नाउ मैं चाहूं तो
जो अपना सिस्टम है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वेरियस क्लोज, बिफोर क्लोजिंग माय वर्चुअल मशीन आई कैन डू 3 टास्क। तो मैं शट डाउन सिग्नल सेंड कर सकता हूँ, मैं आपकी मशीन का स्टेटस में सेव कर सकता हूँ, या सिंपली पावर ऑफ करता हूँ। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, पावर ऑफ किया। तो ये क्या हुआ, अब जो मेरा उबंटू था रन कर रहा था, अब वो क्या हुआ, जो रैम वगैरह इसको एलोकेट था वो अब इससे बाहर चला आया। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म। प्रेम प्रकाश गुप्ता, डिड यू गॉट दैट? यस सर। ओके, सो किसी और को कोई और डाउट है तो दे कैन आस्क। ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम सेशन का एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।